So in petrology, we'll discuss about the different types of rocks, formation, texture, and structure. So there are different types of rock like sedimentary rock, igneous rock, and metamorphic rock. तो इन rocks का formation कैसे होता है, and also on the basis of formation, है ना, इनका टेक्सचर किस तरह से फॉर्म होता है एंड स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होता है. तो इस टेक्सचर और स्ट्रक्चर पे जाने से पहले सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि रॉक्स का क्लासिफिकेशन क्या है ना. रॉक्स का क्लासिफिकेशन इज, अगर मैं बात करूं दैट फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स तो फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स के अंडर में क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स को डिस्कस करूंगा. दैट इज योर classification of rocks. So there are four groups. That is, first one is your geological classification. Second one is your physical classification. And third one is your chemical classification. And fourth one is your classification based on the hardness of stone. That is what? Fourth one is your classification based on hardness of rock. This is the general classification of rock. That rock is classified in four groups. That is, first one is your geological classification, second one is your physical classification, third is your chemical classification, and fourth is your classification based on the hardness. Now, अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, that is your geological classification. So under the geological classification there are three types of rocks, that is igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. So under the geological classification there are three types of rocks, that is your sedimentary rock, igneous rock and metamorphic rock. Now further, अगर आप igneous rock को classify करते हो, अगर मैं igneous rock को further classify करूं, तो igneous rock further classified into three groups, that is what? Plutonic rock, plutonic igneous rock, volcanic igneous rock and hypervessel igneous rock. This is what? The further classification of igneous rock, that is plutonic igneous rock, volcanic igneous rock and hypervessel igneous. And this classification is based on the depth of the formation, है ना, कि formation किस depth पे हुआ. अगर मैं इसको आपको इस तरह से समझाऊं, देखिए the formation of igneous rock कैसे फॉर्म होता है. अगर जनरल टर्म में आप बात करोगे, the formation of igneous rock is the solidification of lava that comes out अर्थ सरफेस, है ना. जब लावा एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर में, देन सॉलिडिफिकेशन ऑफ दैट लावा से जो फॉर्मेशन होता है रॉक्स का, दैट इज योर इग्नियस रॉक. सो दिस इज योर, सपोज वॉल्केनो है और एंड विद इन द अर्थ सरफेस आपका मोल्टेन मटेरियल है. दिस इज योर मोल्टेन मटेरियल सपोज, एंड दिस मोल्टेन मटेरियल इज कॉल्ड मैग्मा. एंड व्हेन दिस मैग्मा कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस and exposed to the atmosphere, then this lava, then this molten material cools down and solidify and form the rock. That rock is called igneous rock. This is what? Simple formation of igneous rock. सिंपल टर्म में this molten material जो अर्थ सरफेस के नीचे है वो बाहर आया, ओपन टू एक्सपोज हुआ एटमॉस्फेयर में, देन सॉलिडिफाई हुआ, कूल डाउन हुआ, एंड देन द फॉर्मेशन इज व्हाट? इग्नियस रॉक. नाउ
अब प्रोसेस समझिए, क्लासिफाई करते हैं। मैंने कहा ये अर्थ सरफेस पे आपका फॉर्मेशन हुआ, दिस इज योर अर्थ सरफेस, दिस इज योर अर्थ सरफेस या अर्थ क्रस्ट, ओके, दिस इज योर अर्थ सरफेस। नाउ अभी मैंने कहा एक फॉर्मेशन तो आपका अर्थ सरफेस हुआ, ओपन टू एटमॉस्फेयर हुआ। नाउ सपोज दिस इज योर लेवल जहां पे फॉर्मेशन हुआ है। अभी दूसरा फॉर्मेशन की बात करता हूं, और रॉक का जो फॉर्मेशन, सपोज फॉर्मेशन यहां पे भी हो सकता है, यानी कि अर्थ सरफेस पे थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, शैलोअर डेप्थ पे भी हो सकता है, या ये फॉर्मेशन यहां पे भी हो सकता है, अर्थ सरफेस पे बहुत ज्यादा नीचे डेप्थ पे भी हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। अब देखिए जो फॉर्मेशन, अब इस फॉर्मेशन डेप्थ के बेसिस पे या ये फॉर्मेशन डेप्थ से क्या फर्क पड़ेगा, तो फॉर्मेशन डेप्थ से किस चीज पे फर्क पड़ेगा, कूलिंग रेट पे फर्क पड़ेगा। अगर आपका फॉर्मेशन अर्थ सरफेस पे हो रहा है तो कूलिंग रेट क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, कूलिंग रेट आपका बहुत ज्यादा हाई होगा। और फॉर्मेशन अगर बहुत ज्यादा डेप्थ पे हो रहा है तो कूलिंग रेट लो होगा। सो बेस्ड ऑन दिस कूलिंग रेट फिनोमिना, कूलिंग रेट फिनोमिना आपका कैरेक्टराइजेशन होगा, क्लासिफिकेशन होगा रॉक्स का। तो अब देखिए अगर आपका अर्थ सरफेस पे फॉर्मेशन हो रहा है मींस कूलिंग रेट बहुत ज्यादा है, और कूलिंग रेट जब बहुत ज्यादा है तो जो क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे वो क्रिस्टल्स क्या होंगे, फाइन क्रिस्टल्स होंगे, दैट इज व्हाट, फाइन क्रिस्टल, फाइन क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन। और जो ये डेप्थ पे फॉर्मेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, एट ए ग्रेटर डेप्थ फॉर्मेशन हो रहा है, इस केस में जो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होगा दैट इज कोर्स ग्रेन क्रिस्टल, लार्ज साइज क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन, दिस व्हाट है ना। अब देखिए तो यहाँ पे जो अर्थ सरफेस पे इग्नियस रॉक फॉर्म हो गई उसको मैंने क्या कहा, वॉल्केनिक इग्नियस रॉक, दिस व्हाट, ऑन द formation is on the surface, that rock is called volcanic igneous rock। एंड जो कंसिडरेबल डेप्थ पे जमीन से बहुत ज्यादा नीचे हो रही है उसको मैंने कह दिया प्लूटोनिक रॉक। और जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज व्हाट, हाइपरवेसल रॉक, हाइपरवेसल इग्नियस रॉक, दिस इज व्हाट। ये क्लियर होना चाहिए प्रोसेस आपको कि इग्नियस रॉक कैरेक्टराइज होता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। देन जियोलॉजिकल इग्नियस रॉक को फर्दर क्लासिफाई किया 3 पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेप्थ। ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन, की फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, और ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन कूलिंग रेट पे इफेक्ट पड़ रहा है। एंड कूलिंग रेट के कारण आपका क्रिस्टलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन वॉल्केनिक रॉक के केस में फाइन है क्योंकि कूलिंग रेट बहुत ज्यादा है, प्लूटोनिक रॉक के केस में आपका कूलिंग रेट स्लो है। देन जो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज कोर्स ग्रेन क्रिस्टल, दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वॉल्केनिक रॉक का एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो वॉल्केनिक रॉक का एग्जाम्पल बेसाल्ट है। प्लूटोनिक रॉक की बात करूं तो ग्रेनाइट है। एंड अगर हाइपरवेसल की बात करूं तो डोलेराइट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपरवेसल इग्नियस रॉक। तो अगर ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट इज व्हाट, इट इज ए प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। नाउ अगर इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव के टर्म में आप बात करते हो तो जो अंदर फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज योर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एंड जो अर्थ सरफेस हो रहा है दैट इज योर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक आपका कौन सा है, वॉल्केनिक igneous rock is your extrusive igneous rock, that is your basalt is your extrusive igneous rock, and granite is your intrusive igneous rock, and same dolerite is your intrusive igneous rock. Okay, okay, तो आपने प्रीवियस में हमने इग्नियस रॉक का डिस्कशन किया था, दैट इज योर अंडर जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक को फर्दर क्लासिफाई किया दैट इज प्लूटोनिक, वॉल्केनिक एंड हाइपरवेसल, एंड द फॉर्मेशन इज लाइक दिस, है ना। नाउ सेकंड वन इज योर सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको डिस्कस करते हैं।
तो देखिए सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन, मैं इसको यहां से भी हटा देता हूं। सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट से बना है। एंड व्हाट इज सेडिमेंट्स? सेडिमेंट्स को कुछ इस तरह से हम समझते हैं। सपोज दिस इज योर रॉक, दिस इज योर रॉक, दिस इज योर प्री एग्जिस्टिंग रॉक, एंड ये रॉक वेदर्ड हुई, वेदर्ड होने के बाद ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हुई, देन दिस इज इरोजन एंड बाय फिजिकल वेदरिंग, एंड दिस इरोडेड, दिस डिसइंटीग्रेटेड पार्ट जिनको मैं सेडिमेंट्स बोल रहा हूँ, These sediments क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे बाय एनी मीडिया, दैट इज योर विंड और वाटर। सपोज रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुए या विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुए, है ना, एंड देन डिपॉजिट होंगे। तो सपोज यहाँ पे आपका डिपोजिशन हो रहा है, तो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, सीमेंटिंग ऑफ सेडिमेंट्स इन लेयर्स, इन लेयर्स। तो लेयर्स में जो फॉर्मेशन होता है, सपोज मैंने कहा दिस इज योर वेडिंग प्लेन जिसपे फॉर्मेशन होगा, एंड दिस वेडिंग प्लेन इज हॉरिजॉन्टल, एंड दिस सेडिमेंट्स, ये जो पार्टिकल्स हैं, जो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट्स ऑफ द रॉक हैं, ये ट्रांसपोर्ट होकर सपोज यहाँ पे डिपॉजिट होंगे, यहाँ पे डिपॉजिट होंगे। तो दिस इज व्हाट वन लेयर फॉर्मेशन हुआ है। नाउ दिस डिपोजिशन फर्दर कंटिन्यू होगा। सो सपोज इस तरह से आपका सेकेंड लेयर का फॉर्मेशन हो गया। नाउ फर्दर डिपोजिशन टेक्स प्लेस। तो इस तरह से जो लेयर्स में फॉर्मेशन होगा, एंड दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड व्हाट? सेडिमेंट्री रॉक। दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, दिस इज अ वेडिंग प्लेन 1, वेडिंग प्लेन 2, वेडिंग प्लेन 3 एंड वेडिंग प्लेन 4। तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेशन दिखाया है, ये आपको थोड़ा पैरेलल फॉर्मेशन दिख रहा होगा, जैसा एक पैरेलल फॉर्मेशन। एंड ऑल्सो दिस वेडिंग प्लेन इज हॉरिजॉन्टल, है ना, नॉट इंक्लाइंड। बट ऐसा जरूरी नहीं है, फॉर्मेशन आपका ये जरूरी नहीं है कि आपका पैरेलल फॉर्मेशन है ना, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये यूनिफॉर्म साइज के नहीं होंगे, है ना। तो मे बी जो आपका फॉर्मेशन हो ये आपका नॉन पैरेलल फॉर्मेशन भी हो सकता है। फॉर्मेशन इज लाइक दिस, सपोज दिस इज योर वन लेयर फॉर्म हुई, वन लेयर फॉर्म हुई, तो दिस इज लाइक नॉन पैरेलल फॉर्मेशन भी हो सकता है, नॉन पैरेलल फॉर्मेशन भी हो सकता है ना। तो आपका फॉर्मेशन कुछ लेयर्स में फॉर्मेशन किसका? सेडिमेंट्स का। सीमेंटिंग इन लेयर्स इज व्हाट? सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर है ये बात? एंड द साइज ऑफ पार्टिकल्स, है ना, साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो साइज ऑफ पार्टिकल्स की जब मैं बात करूंगा तो देयर आर डिफरेंट साइजेस में क्लासिफाई कर देता हूं। दैट इज व्हाट? बोल्डर्स, कोबल्स, पेबल्स, gravel, sand, silt and clay. There are different size of particle. On the basis of size मैंने ये particles decreasing order में आपको दिखाए हैं। That is boulders. The boulder size is greater than 300 और आप कहीं भी आपको 200 greater than 200 भी मिलेगा। तो अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 300 बताऊँ, है ना। तो दिस इज योर पार्टिकल साइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस, ओके। तो बेसिकली दिस इज योर सॉइल क्लासिफिकेशन। जब आप फर्दर जियोटेक्निकल कोर्स में जाओगे तो दिस इज योर सॉइल क्लासिफिकेशन। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन वहाँ में भी आपको टेबल्स नहीं मिलेगा। तो based on this Indian standard soil classification, so it is soil classification. Soil is what? Soil is an end result of a rock, है ना, and a product of rock, ठीक है ना। तो this is what? Disintegrated part of rock, okay. तो this is sedimentary rock का formation किस तरह से होता है ना, वो यहाँ पे देखा। Now third one is your metamorphic rock. Third one is your metamorphic rock.
ओके, सो मेटामॉर्फिक रॉक को देखते हैं। सो दिस इज व्हाट मेटामॉर्फिक रॉक, जिस वर्ड जैसे सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट से बना है, मैं यहाँ पे प्रोसेस की बात करता हूँ, तो मेटामॉर्फिक रॉक बना है मेटामॉर्फिज्म, एंड मेटामॉर्फिज्म इज नथिंग बट मेटामॉर्फिज्म इज योर चेंज इन नेचर। मेटामॉर्फिज्म इज चेंज इन नेचर, चेंज इन नेचर। एंड चेंज इन नेचर, किसके चेंज? नेचर में चेंज, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है उसके नेचर में चेंज, और नेचर में चेंज इज ड्यू टू, नेचर में चेंज इज ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर, या सिंपली मैं कह दूं हीट एंड प्रेशर, हीट एंड प्रेशर। तो एक्सेसिव हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर जब अप्लाई होगा उस प्री एग्जिस्टिंग रॉक, दैट इज योर इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक, देन उसके नेचर में चेंज आएगा, एंड दिस नेचर में चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म, एंड बाय दिस प्रोसेस जो रॉक का फॉर्मेशन होगा दैट इज योर मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। तो अगर आपकी सपोज इग्नियस रॉक एग्जिस्ट कर रही है एंड देन उसके ऊपर एक्सेसिव हीट अप्लाई हुआ या एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई हुआ, देन उसके नेचर में चेंज आएगा, देन दैट नेचर में चेंज की वजह से एक नई रॉक का फॉर्मेशन होगा, दैट फॉर्मेशन इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। तो मेटामॉर्फिक रॉक को फर्दर 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज योर, मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिख देता हूँ, दैट मेटामॉर्फिक रॉक फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट, दैट इज योर, इस तरह से इसको क्लासिफिकेशन लिख लीजिए, दैट मेटामॉर्फिक रॉक further classified into 4 parts, that is plutonic metamorphism, plutonic metamorphism, second one plutonic metamorphism, second one is cataclastic metamorphism, and third one is thermal metamorphism, and fourth one is your dynamo thermal metamorphism. This is what the metamorphic rock further classified into 4 parts, that is your plutonic metamorphism, second one is your cataclastic metamorphism, third one is your thermal metamorphism, and fourth one is your dynamo थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो जो थर्मल नाम से पता चल रहा है दैट इस कंडीशन में, इस मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में कौन डोमिनेट करेगा? हीट डोमिनेट करेगा। अगर आप प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म की बात करोगे तो प्लूटोनिक वर्ड को अगर आप देखोगे तो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक में फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? एट ए ग्रेटर डेप्थ फॉर्मेशन होता है। तो एट ए ग्रेटर डेप्थ अगर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा। अगर प्रेशर की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे 2 टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ प्रेशर के फॉर्म में, दैट इज यूनिफॉर्म प्रेशर एंड डायरेक्ट प्रेशर। तो अगर आप यूनिफॉर्म प्रेशर की बात करोगे तो यूनिफॉर्म प्रेशर आपका सॉलिड पे भी अप्लाई हो सकता है, लिक्विड पे भी अप्लाई हो सकता है। बट अगर डायरेक्ट प्रेशर की बात करते हो तो डायरेक्ट प्रेशर आपका कहाँ पे अप्लाई होगा? ओनली फॉर सॉलिड्स, ओनली फॉर सॉलिड। तो यहाँ पे जब आप ग्रेटर डेप्थ की बात करते हो तो वहां पे आपका यूनिफॉर्म प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर। सो प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म यानी कि प्लूटोनिक मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन इज ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड यूनिफॉर्म प्रेशर, एंड दिस थर्मल मेटामॉर्फिज्म इज ड्यू टू हाई हीट या हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ठीक है, नाउ this is what clear now? Now second one is your cataclastic metamorphism. Cataclastic metamorphism is due to direct pressure, is due to cataclastic metamorphism due to direct pressure and temperature,
direct pressure and temperature. Now डायनेमोथर्मल, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि डायनेमोथर्मल का जो मेटामॉर्फिक रॉक का जो फॉर्मेशन होगा, इट इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड combination of heat and direct pressure. Heat and direct pressure. Clear है? तो this is a metamorphic rock formation process. That metamorphic rock further classified into 4 parts, that is plutonic metamorphism, cataclysmic, thermal and dynamothermal. The plutonic is due to high temperature and uniform pressure. Due to high temperature and uniform pressure क्या होगा, change in nature होगा, that is your metamorphism, and this process, due to this process the formation होगा, that is your metamorphism. तो इस तरह से मेटामॉर्फिक हो. तो यहाँ पे आपने देखा that is geological classification, and based on this geological classification ये आपका classification complete होता है. Now further next lecture में हम physical classification, chemical classification and classification based on the hardness discuss करेंगे. Okay, that's it for today.